ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਮਾਨਤ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਉਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡੀਡੀ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਡੀਡੀ ਗੋਇਲ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ KD ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਸੌਂਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਜਾਗ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਤੇ ਰਾਜਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਰਾਜਨੇਤਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅਗਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਰਮੀ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਗਾਣੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਾਣੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ? एक अपना बच्चों पे है, ठीक है, कि लाइक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बता सकते हो कि बचपन में बच्चे अलग हो जाते हैं तो बड़े होके मिलते हैं तो उनका वो बचपन याद किया जाता है। तो कुछ वैसा सा कॉन्सेप्ट है और काफी अच्छा सॉन्ग है। और सारे गामा पा के सिंगर था एक, सारे गामा पा पे उसने सॉन्ग गाया है। okay. तो ये 17 अगस्त को मेरा बर्थडे है तो उस दिन हम लॉन्च करेंगे, तो उस दिन का वेट करते हैं, उस दिन ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ? पर्सनल लाइफ में सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। मतलब ठीक है, चल रहा है जो भी कुछ है। ਤਾਂ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? अकेले रहना सीख गई हूँ, ये कह सकते हैं। ਤੇ ਅਕੇਲਾ ਰਹਿਣਾ ਕਾਹਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? अकेले रहना का तो सीख लिया मैं। कहते ਜਦੋਂ ਧੋਖਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਧੋਖੇ ਝੇਲ ਚੁੱਕੀ ਹੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕੇਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕੇਲੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੂੰ। ਔਰ इन दिनों चाह गल सीखी कि अगर अकेले रह के देख लिया, औखा ਹੁੰਦਾ स्टार्टिंग च, बट अगर ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ और रहना सीख लिया तो वो तो ਵਧੀਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਕੇਲੇਪਨ ਚ ਜਿਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਡ ਨਹੀਂ। ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਹਾਂ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਖੁਦ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਧੋਖਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਤਬਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਨੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ बुरा लगे तो मैं जान सकदा भी किवें मुलाकात हुई, कौन शख्स सी वो? पहली बात, उस शख्स को पहचान की जरूरत नहीं है क्योंकि हर जगह पे मेरे साथ ही रहा है। अच्छा। तो सभी जानते हैं, हर मेरे इवेंट पे, कॉन्फ्रेंसेस पे और हर जगह पे हम साथ ही दिखते थे। सो जनाब का नाम था कायरब खुराना। अच्छा। तो बस ठीक था, मिले थे हम आज से इसी महीने में, अगस्त के महीने में हमारी मुलाकात हुई थी किसी प्लेटफॉर्म पे। मेरे बर्थडे के 2 दिन बाद हमारी मुलाकात हुई थी और वो मुलाकात ऐसी थी कि बस अगर मुझे मौका मिले तो वो मुलाकात मिटाना चाहूंगी, अगर मैं पास्ट में जा सकूं तो। मतलब इन्ना दिलों भर चुके हो कि हाँ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ ਹਸੀਨ ਪਲ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? बिल्कुल, काश हो सकता, पर कहते काश काश तो आप लेने है ना। काश बहुत, पता नहीं ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ वर्ड है, मैं इनू दस भी नहीं सकती ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ वर्ड है। काश दिन ਚ 4 ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਾਸ਼ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। बट इन दिनों च मैं ये काश तो भी पीछा छुड़ा रही हूँ क्योंकि बहुत बहुत कुछ झेल लिया यार, हुन झेलन दी ताकत नहीं हैगी, हुन पास्ट दे बारे सोचन दी भी ताकत नहीं हैगी। मेरी 2 महीने हो गए सानू अड हुए, अड तो हो गए, कहते हैं किसी ने की खूब गल कही सी किसी ने कि उनसे मिले कहानी बनी 2। क्या बात है। उनसे मिले कहानी बनी 2, उनसे जुदा हुए कहानी बनी 3। एक वो जो उनकी थी, एक वो जो हमारी थी, एक वो जो मिलकर बैठ जाते तो हम दोनों की होती। क्या बात है। तो 2 महीने से जो मेरा फ्रेंड सर्कल था बाकी, उनको कह रही थी बार बार कि यार एक बार बात हो जाए, एक बार बात हो जाए। लास्ट बार बात हुई तो बात होने पे सुनने में जो जो बातें आई, जो जो उसने बोला, वो बर्दाश्त ही नहीं हुई। जिस इंसान के लिए सुबह उठ के भगवान को सजदा करते हुए एक दुआ निकलती थी, हे भगवान मेरे सारे सुख इसके, इसके सारे दुख मेरे, मेरी सारी खुशियां इसकी, इसके सारे आंसू मेरे। कभी खुद के लिए तो कुछ मांगा ही नहीं था। तो आज उस इंसान के मुंह से मैंने आखिरी 4 शब्द ये सुने कि मेरी बद्दुआ है कि तुझे जो ट्यूमर की प्रॉब्लम है, तेरी मौत ऐसी गंदी हो कि तेरे आसपास कोई लोग भी तेरे पास ना हो और तू तड़प कर मरे। अपने चाहने वाले से जब आप ये सुन लो ना, तो इंसान टूटता बहुत है। ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊਗਾ मौत आज मेरी उसने मांगी। वो माता काली का बहुत बड़ा भक्त है, मैं कृष्ण की भक्त हूँ। मैंने उसके लिए माता काली को मानना शुरू किया। मैंने कहा चलो यार, रिश्ते में तो सास लगी, हमारी मान लेते हैं उन्हें भी। तो की पता वो थोड़े घर को कृष्ण नु बनना लगता है। हाँ ठीक है। तो मैं गई काली माता के मंदिर इन दिनों में, मेरा काली माता से बड़ा प्रेम हो गया था। मैं कहा माँ तूने क्या कर दिया, इतना बुरा मेरे साथ क्यों कर दिया, माता रानी क्या बिगाड़ा था, बच्चा तेरा वो था, बच्ची तेरी मैं भी थी, इतना भेदभाव क्यों। तो एक रात मैं बैठे बैठे मैंने कोई गजल पढ़ा कहीं पर, वो गजल कुछ ऐसे था, हमने कहा भगवान को, हे भगवान तूने हमें उसका क्यों नहीं किया। भगवान मुस्कुराया, भगवान ने मुस्कुराते हुए बात बोली, मैं तो तुझे उसका कर देता, उसने तुझे कभी दुआओं में मांगा ही नहीं मुझसे। तो इसी बात पर, वो बात सुनने के बाद मेरे माइंड में ये बात आ गई, भाई आज के बाद मैं तो नहीं मांगूंगी क्योंकि उसने मुझे कभी नहीं मांगा होगा शायद,
तो आज उस भगवान से उसने मेरी मौत मांगी। अच्छा। वो उस भगवान को कह रहा है कि मेरी बद्दू आए, तुझे ये हो जाए। मैं ये चीज सोचती हूँ, इस टाइम भी गूज़बम्स आ रहे हैं कि ना, उसने मेरी मौत मांग ली, उसके मांगने से अगर मेरी मौत आनी होती तो मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती। हाँ। उसके मांगने से अगर मेरी मौत आनी होती, उसके बोलने से अगर मेरा कुछ होना होता, तो शायद आज जिस रास्ते पे मैं जा रही हूँ उस रास्ते पे मैं जा ही नहीं पाती। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। बिल्कुल जी। और उसके साथ जब मैं थी तब भी मैं ये मानती हूँ, पर उसके बाद जो मैं हूँ वो सिर्फ मैं हूँ। वो मैं शायद उसके साथ रहती तो कभी बन नहीं पाती। खुद ही पहचान होगी। हाँ, कहते हैं ना समय आपका बटा होता है। हाँ। मेरा समय बहुत बटा हुआ था उस वक्त, क्योंकि दिन में 24 घंटे में से 18 उसके बारे में सोचने में निकल जाते थे। शायद आज के 24 घंटे में से पूरा दिन काम पे लगता है कि क्या करना है क्या नहीं। कमबख्ती रातें हैं, बस ये रातें नहीं कटती। 2 घंटे, सच बोल रही हूँ, 2 महीने से सो के नहीं देखा है। 2 महीने हो गए। क्या हुआ 2 घंटे की नींद ले ली तो, पर 2 महीने से सो के तो नहीं देखा हमने। इश्क ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। आपका एक क्वेश्चन था अभी कि मोहब्बत शायद पूरी नहीं होती, आपने ऐसा कुछ पूछा था। एक बार रिपीट करोगे? मोहब्बत पाउन ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂਗਾ। हाँ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਦੇ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਮੰਗੋ ਕਿ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, जो दिन वो मेरे नाल नहीं खुश, किते भी रवे खुश रवे। बिल्कुल। आज मैं ना एक चीज अपोलॉजी मांगना चाहूंगी एक चीज की। थोड़ा सा ना, थोड़ी सी घमंडी हूँ मैं, सच बोलती हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। मैं जल्दी से सॉरी नहीं बोलती किसी को। नहीं कोई गल नहीं। पर आज एक अपोलॉजी है मेरी साइड से, वो ये कि ना, जब वो मुझे छोड़कर गया ना, जो आसपास का एक सर्कल होता है ना, उस आसपास के सर्कल से बहुत फर्क पड़ता है। जब मुझे वो छोड़कर गया तो मेरे आसपास के सर्कल में कुछ क्लोज वन 4-5 चेहरे थे। 24 घंटे में मुझे 24 तरह की उंगलियां लगाई जा रही थी। वो उंगलियां ये थी कि तुझे लूट कर खा गया, तेरे जरिए नेम फेम ले गया, तुझसे अपनी पहचान छुपा गया, सब कुछ तो झूठा था। मैं एक दिन बैठकर रोई अकेले में। मैंने सोचा लोगों का बोलना तो सही है। मैंने गुस्से में एक डिसीजन उठाया, गाड़ी निकाली, उसके घर गई, उसके माँ बाप के साथ बदतमीजी करी आपने। हाँ, वो मेरा गिल्ट है। गलती उसकी थी, चीजें उसने मेरे साथ बुरी करी, उसके माँ बाप ने नहीं। सही। वहां जाकर पता ये चला कि जब मैंने उनके माँ बाप से पूछा कि आपके बेटे का ये नाम था, वो कहते हैं हम तो इस नाम वाले किसी को जानते ही नहीं। मुझे ये फील हुआ इन दिनों में कि धोखा सिर्फ मेरे साथ नहीं, धोखा तो उन माँ बाप के साथ भी था। तो मैं उसके माँ बाप से सॉरी चाहती हूँ। कभी शायद फेस करने की हिम्मत तो नहीं होगी, पर कभी मिली तो उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगी। बहुत वधिया गल है, क्योंकि जो बंदा गलती करता तो एक्सेप्ट कर ली, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ जी। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ उसके माँ बाप से माफी मांगना चाहूंगी और उससे एक बात पूछना चाहूंगी, क्या कमी थी मुझ में? उससे सिर्फ ये पूछना चाहूंगे, कहाँ कमी रह गई थी? शायद कमियां बता दे वो, जिसमें हम सुधार कर लें, क्योंकि कुछ तो रही होगी, तभी शायद ऐसा हुआ। कहते हैं ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। हर रिश्ता खराब होने में कुछ ना कुछ गलती आपकी भी होती है। तो शायद मेरी कुछ गलतियां रही होंगी, कुछ तो मुझे पता भी है। वो शायद ये थी कि उससे ऊपर मैंने अपने आसपास के लोगों को रखा।
और आज उसके जाने के बाद वो आसपास के लोगों के चेहरे दिख गए हैं। आज वो आसपास के लोग भी बहुत दूर हैं और जिसे पास होना चाहिए था वो उनसे भी दूर है। आज बात नहीं होती, मैं उसकी स्टोरियां स्टॉक करती हूँ, उसे झूठ नहीं बोलूंगी। क्या बात है? 2 महीने में एक भी स्टोरी जो डली है आज तक, आज सारी मेरे फोन में सेव्ड पड़ी है। ठीक है, अब बात ये थी मोहब्बत की। आपने बोला था कि मोहब्बत को पाना जो भी है, मोहब्बत में पाना ही जरूरी नहीं। हाँ, मुझसे ये सारी गलतियां होने के बाद जब मैंने रियलाइज करा ना, तो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था, भूल गई ना तो उसको? चल बला टली, दफा हुआ हरामजादा। बहुत गालियां सुनने को मिली। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में मैंने सुनती रही, टॉलरेट करती रही कि छोड़ो यार, क्यों मुंह लगना है ना। बट फिर एक दिन आग लग गई, सबको बिठाया। मैंने कहा आज के बाद मेरे बंदे के बारे में किसी ने कुछ भी बोला ना, बीच में से काट दूंगी। ठीक है, कहते जब आप बोलते थे तब, यहां भी मेरी गलती थी क्योंकि पहले तो मैं ही बोल रही थी। मैंने कहा वो मेरी विनाश काले विपरीत बुद्धि हुई थी, उस वक्त मेरा दिमाग खाली था और वो शैतान का घर था। आज वो सही रास्ते पे है। ना मैं सुनूंगी और मैं तो बोलूंगी नहीं, और जिसने बोला वो बीच में से कटेगा। फिर मुझसे क्वेश्चन किया गया मेरे बहुत क्लोज वन से कि भाई तू भूल गई है ना उसको। मैं बैठी, मैंने बोला उससे कि तुझे क्या लगता है? कहती हाँ तो भूल गई है उसको, आजकल तो अपना एंजॉय कर रही है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मोहब्बत का मतलब पाना नहीं होता। मोहब्बत असली वो है जो आप गवाओ। मोहब्बत का मतलब गवाना है। कहती तेरे साथ तो नहीं है वो। मैंने कहा अगर हाँ, वो नहीं तो उसका एहसास है। मैंने कहा हाँ मेरे साथ नहीं है वो, देखना चाहेगी तो मेरे साथ है वो। उसने कहा दिखा। मैंने कहा मेरे फोन के वॉलपेपर पे है वो। मैंने कहा मेरे हाथ पे है वो। ओके, टैटू। मैंने कहा मेरे यहाँ नाम है उसका। मैंने कहा मेरे घर की दीवारों पे है वो। मेरे दिमाग में है वो, मेरे दिल में है वो। अब इतनी जगह उसे निकाल के दिखा सकती है तो तू मुझे निकाल के दिखा दे। क्या बात है। मतलब हुण ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ किसी होर ने बाहर? वो दुबई भाग गया है किसी लड़के के साथ। अच्छा, यस, लड़के दे नाल लड़के के साथ रिलेशन में। यस, तो कोई बात नहीं। कहते हैं बकरे का बच्चा कब तक खैर मनाएगा। सही है। मैं एक चीज मानती हूँ कि आज वो मेरे साथ नहीं है, शायद कभी नहीं होगा। और एक चीज और भी मानती हूँ, मुझे मेरे रब पे बड़ा भरोसा है। सही। मेरे रब ने मेरे साथ अगर कुछ गलत किया है ना, तो उसने कुछ अच्छा भी सोच रखा होगा। और मेरे रब से मैंने आज तक कभी खुद के लिए कुछ मांगा नहीं। पहली बार मेरे रब से कुछ मांगा, वो मांगा ये कि रब्बा जो मर्जी तू मेरे को दे दे, मेरे को तू इतनी पीड़ाएं दे, इतना दुख दे, इतनी तकलीफ दे कि तूने अपने किसी बच्चे को ना दी हो, मैं सब बर्दाश्त करूंगी। उसका कारण ये कि ना, अगर मैं सारी दुख पीड़ाएं बर्दाश्त कर रही हूँ जो भगवान मुझे दे रहा है, तो भगवान भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि यार ये मेरा बच्चा, इसको मैं जो भी परेशानी देता हूँ ये बड़ा खुश होके लेता है, तो अब मुझे इसका अच्छा सोचना चाहिए। कभी तो उसे दया आएगी ना। तो शायद जिस दिन उससे दया आ जाए, तो उस दिन मैं उससे सिर्फ एक बात मांगूंगी, हे भगवान एक आखिरी बार मुलाकात करवा दे, और वो मुलाकात ऐसी होनी चाहिए कि उसको अपनी सारी गलतियों का पछतावा हो। क्या हुआ? जैसे कि शेर है कि कभी तो आना होगा तेरा मेरे शहर की गलियों में, कभी तो आना होगा तेरा मेरे शहर की गलियों में, हम बेगाने हुए शहर तो नहीं। क्या बात है। बोल जी, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲੇ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, एक्चुअली जो बात आप बोल रहे हो, सॉरी आपकी बात बीच में काट रही हूँ।
मुझे आज से 2 साल पहले मेरा गूगल पे नहीं चल रहा था, तो मैंने अपने किसी नोन को बोला कि कायरव के अकाउंट में इतने की ट्रांजैक्शन कर दे। वो मेरा बहुत क्लोज वन था जिसने उसकी ट्रांजैक्शन करी, और उसने मुझसे ये बात बोली कि तुझे एक बात बताऊं, चुभेगी तेरे को। मैंने कहा यार श्योर। कहते तेरे बंदे का नाम तो कायरव खुराना है ही नहीं, उसका तो रियल नाम विशाल प्राशर है। फिर उसके बाद सच्चाइयां सामने आती गई, बहुत कुछ सुनने में आया बीच में। उसने बोला था कि वो बॉम्बे से है, उसके फादर जर्मनी में काम करते हैं, उसकी मदर कॉलेज में ट्रस्टी हैं, अपनी फैमिली का लौता लड़का है। हमने तो मोहब्बत उसकी जायदाद से कभी करी नहीं थी, क्योंकि भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ था। तो हुआ ये कि भाई पता चली जब सच्चाई हकीकत से सामना हुआ, तो हकीकत कुछ ऐसी निकली कि विशाल प्राशर उसका रियल नाम था। बॉम्बे तो बहुत दूर की बात है, हिमाचल बैजनाथ से वो निकला। अच्छा। फादर साहब उसके जर्मनी में नहीं थे, किसी स्कूल में चपड़ासी थे। मदर उसकी हाउसवाइफ थी, और अपने माँ बाप का लौता बच्चा नहीं, एक बहन भी थी उसकी, वर्षा प्राशर। अच्छा। टूटी मैं वहां, बहुत टूटी कि क्या हो गया मेरे साथ। 2 साल से 2.5 साल से मैं सारी दुनिया के आगे चीख चीख कर बोल रही हूँ कायरव खुराना, कायरव खुराना, कायरव खुराना। आज उस दुनिया के सामने मैं खुद कैसे जाऊंगी, क्योंकि दुनिया सवाल करते वक्त देखती नहीं है, और आप दुनिया का मुंह नहीं पकड़ सकते। आज महफिलों में बैठती हूँ, महफिलों में बैठने से डरती हूँ। उन महफिलों में मुझसे पूछा जाता है हमने तो पहले ही बोला था आपको, क्या जवाब दूं? मेरे पास कोई जवाब नहीं है उस महफिलों के लिए। जन्मदिन आ रहा है मेरा, 17 अगस्त को जन्मदिन है मेरा। मैं ना आज से 4 साल पहले गिटार बजाते थे, मेरे फादर साहब ने गिफ्ट करा था। किसी कारण से वो गिटार आज मेरे पास नहीं है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले कायरव को बोला था, मैंने कहा ना मेरी जान मुझे गिटार लेना है। खरीदने को खुद खरीद सकती हूँ, पर खुद नहीं खरीदूंगी, क्योंकि किसी ऐसे से चाहिए जो अपना हो, क्लोज हो। उसने कहा कि मिल जाएगा, इस जन्मदिन पे मैं दूंगा। आज जन्मदिन भी आने वाला है, लोग भी तैयार बैठे हैं, रोज कॉल आ रही है पार्टी कहाँ है, पर मुझे पता है मेरे जन्मदिन पे मैं कहाँ हूं। किसके लिए मनाऊं? जिसके साथ मनाने के सपने देखे थे, और उसने जो सपने दिखाए थे वो तो सब सपने भी झूठे थे। उसने जो बातें बोली थी वो भी झूठी थी, उसकी पहचान भी झूठी थी, उसका नाम भी झूठा था, उसका वजूद भी झूठा था। मुझे तो यहाँ तक पता चला कि आफ्टर ब्रेकअप मुझे एक लड़की का मैसेज आया, जब मैं उसके माँ बाप के घर गई थी ना, मैंने गुस्से में स्टेटस डाल दिए थे। नाम है लड़की का, शाही माजरा 5 फेस रहती है। लड़की ने मुझे पूछा कि आप विशाल के साथ, और उसने रियल नाम लिया, आप विशाल के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आप क्या लगते हो विशाल के? मैंने भी खुंदस में पूछा भाई, मैंने कहा मेरा तो पति लग गया था, बता तेरा क्या लग गया? लड़की ने बोला कि हम 1.5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और अगले 2 महीने बाद हम शादी करने वाले थे। मेरे साथ खाई कसमें, मेरे साथ खाए वादे, मेरे साथ की गई बातें, वो सब कहाँ गई? भरी महफिल में बैठ के जिस इंसान ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ पकड़कर उसने ये बात बोली कि अगर मुझे मेरे परिवार के लिए लड़की से शादी करनी पड़ भी गई ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। भरी महफिल में जिस इंसान ने मुझे ये वादा किया कि जो मेरी पहली औलाद होगी उस पर हक तेरा होगा। भरी महफिल में जिस इंसान ने मुझे ये वादा करा कि तू मेरी है, मैं तेरा हूं, बस वो सब बातें कहाँ खत्म हो गए। आज उसका सवाल ये है कि जिसने मेरे किसी नॉन से पूछा कि अगर आप किसी को पति मानते हो, आप उसको ऊपर उठाकर नीचे फेंक दोगे?
उसका कहना ये है कि मैंने उसके साथ वो किया। मेरा सवाल उससे ये है कि ना, मैंने तेरे साथ क्या किया? रिश्ते की शुरुआत तूने झूठ से करी, झूठा नाम, झूठी पहचान। दूसरी गलती, बोलना नहीं चाहिए कैमरे पे, मैं बोल सकती हूँ फिर भी। दूसरी गलती, मैंने उसको रंगे हाथ पकड़ा बहुत लोगों के साथ, फिजिकल होते हुए। सो ये चीज भी हुई। ये चीज होने के बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मौके देने चाहिए। गलती इंसानों से होती है, पर चलो ठीक है, हुआ वो। इसके बाद अब उसका क्वेश्चन ये जो था, अब इस क्वेश्चन पे मैं जवाब क्या दूं? एक इंसान ने रिश्ता झूठा रखा, पहचान झूठी रखी, माँ बाप झूठे रखे, प्यार झूठा रखा, मोहब्बत झूठी रखी, हर चीज तो तूने झूठी रखी। अब झूठ रखने के बाद जब सामने तेरी सच्चाई आई, तू मुझे छोड़कर भाग गया किसी और के साथ, बेगाना देश, बेगाना शहर। अपने माँ बाप को तू मेरे बारे में बोल के गया कि कोई सो कॉल्ड हिजड़ा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरी जान को पीछे पड़ा हुआ है। उसके माँ बाप का क्वेश्चन मुझसे ये था कि ये तो हिजड़ा हमारे बेटे के पीछे पड़ा हुआ है, ये तो उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था। ऐसे वैसे अपने माँ बाप को मेरे बारे में झूठ बोल के गया। आज दुबई में खुशनुमा स्टेटस डाल रहा है वो लोगों के साथ, गर्दनों पे लव बाइटों के स्टेटस डाल रहा है वो लोगों के साथ। हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने तो कोई सवाल पूछा ही नहीं। अब उसका सवाल लोगों से ये है कि इसने मेरे साथ ये करी। अब उसको कोई ये तो बता दो कि ये मैंने नहीं करी, जो तूने बोया तूने वो काटा। क्योंकि आज सबको पता है कि उसका नाम क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, उसकी पहचान क्या है। उसकी इतनी औकात तो हो गई थी, मैं नाम नहीं ले सकती, ऐसे नामी चेहरों के साथ बैठने लग गया था वो, जिन्हें आप सिर्फ टीवी पे देख सकते हो, ऐसे नामी चेहरे। और पॉलिटिकल अगर उनका नाम देखा जाए तो बड़े बड़े दिग्गजों में आते हैं वो, और वो उसको जीजा बोलते थे। ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਝੂਠ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅੰਤ नहीं ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत सही बात है आपकी ये। पर मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी सब लोगों को ना, मोहब्बत करो, बहुत जरूरी है, खास करके उन लोगों के लिए जिनका कोई ना हो। शायद मैंने भी इसी उम्मीद में करी थी। पापा है नहीं, माँ से बनती नहीं, परिवार में कोई है नहीं, ऊपर से भगवान ने एक बीमारी दे दी। बीमारी? जी हाँ, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, 3rd स्टेज, मेरी 3rd की 4th लास्ट स्टेज चल रही है। मुझे डॉक्टर्स ने ये बात बोल दी है कि आपको या तो सर्जरी करवानी पड़ेगी, और सर्जरी में भी रिस्क ये है कि या तो आप कोमा में जा सकते हैं, या तो आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, या आपकी याददाश्त जा सकती है। और अगर सर्जरी नहीं करवाती हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। आज के वक्त में मेरे माउथ से डेली माउथ ब्लीडिंग हो रही है। मैदानता से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। अब मेरी कुछ ही टाइम में कीमोथेरेपी शुरू हो जाएगी काइंड ऑफ, जिसकी वजह से मैं शायद ऐसी हालत में पहुंचने वाली हूँ कि टफ होगा मेरे लिए। तो सोचा था कि ना, एक इंसान की एक इच्छा होती है यार, कि जो कमाया वो माँ बाप जैसे होते हैं कि अपने बच्चों के हाथ में देने के लिए कमाते हैं। जो कमाया वो उसके हाथ में दे के मर सको, जो नाम कमाया वो उसके हाथ में सौंप के मर सको, कि वो चलता रहेगा आगे तक। एक लालच था मेरा, वो लालच ये था कि मरते वक्त उसकी बाहें मेरे करीब हो, कि मरने के बाद भी कोई तो है जिसके भरोसे मर गई हूँ, कि पता है कि हाँ अब जो होगा हो जाएगा, रीति रिवाज से होगा। आज एक डर है मन के अंदर ना, वो डर ये है कि कल को कुछ ऐसा हो गया, मैंने किसी का फोन ना उठाया, लोगों को लगेगा बिजी है, 2 दिन 3 दिन लोगों को लगता ही है कि हाँ बिजी होगी, चलो कॉल नहीं उठा रही।
भगवान मेरी हालत ऐसी ना कर दे किसी दिन कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और 3 दिन बाद मेरा शरीर बाहर है। आज डरती हूँ मैं इस चीज से। और किसी इंसान से मांगो तो सिर्फ एक चीज मांगो, मैंने उससे सिर्फ ये मांगा कि अगर कल को नहीं रही ना यार, तो संभाल लियो, सब तेरा ही है। केडी का मतलब ही ये था, कायरव दीपक। अच्छा, उनके नाम के साथ अपने अपना कर लेता ना। हाँ जी। आज कोई भी नहीं है अपना जिसे अपना कह सकूं। कुछ रिश्ते हैं जो भाई बहनों के हैं। 2 बहनें हैं मेरी लाइफ में जिन पे अब थोड़ा सा घमंड है कह सकते हैं, शायद वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ ना एक बहुत खराब चीज होती है, वो ये जब कोई भी रिश्ता मेरे बहुत यहाँ लग के बैठ जाए ना, उस भगवान की ना पता नहीं क्या है, वो भगवान कहता है कि ये तेरे यहाँ नहीं, ये तो मेरे यहाँ लगेगा, मुझे दिखे। वो भगवान मेरे हाथ से ऐसे ले जाता है और मैं ऐसे करके देखती रहती हूँ। बड़ी प्यारी सी स्माइल देते हैं उस भगवान को कि चल ध्यान रखियो मेरे रिश्ते का, है ना। तो ना डर लगता है यार कि एक रिश्ता होता है ना, एक पौधा होता है, वो उसे आप सींचते हो धीरे धीरे करके, है ना। वो पौधा जब बड़ा हो जाए, उस पौधे को कोई उठा कर ले जाए तो दर्द बड़ा होता है। और मेरे साथ तो होता ही आ रहा है शुरू से ना, तो इसलिए डर लगता है। जो गलतियां करके गया, जो सब कुछ करके गया, सब ठीक है, कोई बात नहीं। वो मेरा लिखा था। वो मेरा लिखा कैसे था? मेरा पैसा गया, अच्छा, मेरी इज्जत गई, मेरा घमंड तोड़ा उस इंसान ने लोगों के आगे, क्योंकि मैंने तो बोला था मैं घमंड करती हूँ, मेरा बंदा ऐसा नहीं है। मेरा समय गया, मेरी हेल्थ गई। जब मैं उसके साथ थी, डॉक्टर्स कहते थे आप रिकवर कर रहे हो। मुझे भगवान की कसम, मैं अपने नाम काम की कसम खाकर ये बात बोलती हूँ, उसके जाने के बाद मैं महीने में 4 चक्कर मैदान तक के लगा चुकी हूँ। और डॉक्टर कह रही है एकदम से क्या हो रहा है, आप रिकवर नहीं कर पा रहे। वो मेरा शरीर तोड़कर चला गया, शक्ति ले गई कह सकते हैं। तो ना इतना सब कुछ वो जो ले गया ना, अब समझ सा नहीं आ रहा यार क्या करूं। सारे दिन हंसती रहती हूँ। गम च हसना भी बहुत ਵੱਡੀ ਕਲਾ, क्योंकि सामने वाले ਨੂੰ देखना नहीं चाहिए ਤੁਸੀਂ अंदरों दुखी हो। बिल्कुल। पर ज्यादा हंसना भी, अभी रिसेंट मेरे साथ क्या हुआ ना, एक फर्स्ट टाइम एक लेडी मेरे घर आई, बात कर रही थी उनसे, बड़े नॉर्मल सा है ना। सडनली वो मेरी तरफ ऐसे बैठ के देखती है, कहती दीदी एक बात बोलूं मैं आपको। मैंने कहा हाँ जी प्लीज बोलिए। कहते आप फेक हो, आप बहुत बड़े झूठी हो। मैं कहा भाई तू पहली बार मेरे से मिल रही है तो क्या बकवास कर रही है, 4 बंदे और बैठे हुए थे, ठीक है। बंदी कहती नहीं दीदी आप गलत ले गए। मैंने कहा नहीं मैं सही ले गई, तू मुझे बता तूने मुझे ऐसे क्यों बोला। कहती ना आपकी स्माइल बहुत बड़ा दिखावा और बहुत बड़ी फेक है। आपकी आंखें बताती है कि ये भरी पड़ी है और जिस दिन ये फूटेंगी इनको संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। उसकी ये बात यहाँ पिंच कर गई। क्या बंदी ने सही बात बोली, और बात सही भी थी। पर फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अभी कल मुझसे एक सवाल पूछा किसी ने, कहते कायरव ने करा तो बहुत सही तेरे साथ। मैंने उस पे एक बात बोली, मैंने कहा उसने पता क्या करा मेरे साथ। एक बार एक शाना बैठा था, उस शाने को किसी से दुश्मनी निकालनी थी। उस शाने ने 3 शाने और बुलाए। उसने बोला कि मुझे किससे दुश्मनी निकाली है, क्या करूं। पहला शाना कहता मार दो जी। तो कहते क्या फायदा है, एक बार में मर जाएगा। दूसरा शाना कहता जला दो जी। कहते क्या फायदा, थोड़ा सा तड़प के मर जाएगा। तीसरे शाने ने देखे 2 शानों के क्वेश्चन ये थे, आंसर ये थे, और ये वाला शाना कुछ ज्यादा ही शाना है, इसको कुछ डिफरेंट देना पड़ेगा, है ना। तो वो शाना कहता कि 2 मिनट दो जी। कहता जी आप तो एक काम करो, उसको आप मोहब्बत में डालो, उसका यकीन जीतो, उसको अपने लिए पागल कर दो और उसको छोड़ दो। हर रोज तिल 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 करके मरेगा। मैं कहा मेरे साथ तो 3 शाने वाली करके गया। और मेरे को जिस दिन मिला ना, मैं ये बात पूछना चाहूंगी
कि मेरे नाम की ऐसी कौन सी बड़ी सुपारी तुझे दी गई थी जो मेरे साथ ये किया तूने। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, हाँ जी। ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਗਿਆ? मैं पैसे का एस्टिमेट नहीं बता सकती, बट इतना बता सकती हूँ कि एक नॉर्मल इंसान अगर कमा रहा हो तो उस नॉर्मल इंसान की 20 साल की कमाई लेगी। और मेरे पास अकाउंट स्टेटमेंट है सारी। 7.5 लाख का तो गोल्ड था। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ? गुस्से में कंप्लेन करी थी, पर फिर मन में आया कोई फायदा नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं पीछे हट गई। मैंने ये चीज सोच ली कि उस भगवान ने मुझे ये देने के लिए बनाया है, ऐसे करने के लिए नहीं। शायद उसकी किस्मत में ये था कि वो ये करे और मैं उसके हाथ में रखूं। शायद मेरे पिछले जन्मों का उसको कुछ देना बाकी था जो वो इस जन्म में लेने आया था। और फिर खुद से एक सवाल पूछा, वो सवाल ये, उसने तुझसे पैसे मांगे, उसने तुझसे खर्चे मांगे, उसने तुझसे बहुत सी चीजें मांगी, क्या उसने कभी तुझे ये बोला कि मुझे चाहिए ही चाहिए? मैंने मन में कहा नहीं। फिर मन में आया ये कि भाई उस टाइम तो तू भी ये सोचती थी मेरे प्यार की खुशियां हैं, कोई बात नहीं, ये ले बाबू, ये ले बाबू, है ना। तो मैंने अपने हाथों से चीजें दी है, तो उसके लिए तो क्या ही करना है यार। हाँ, जो समय दिया है वो वापस मिल सके तो भगवान वो दिलवा दे, पैसे का कोई दुख नहीं है। जेड़ा समा चले वो वापस किथे आंदा है? हाँ वो तो है ही। कई बार लगता है एक सपने में जी रही हूँ, सुबह कोई उठाएगा सब ठीक होगा, पता नहीं वो सुबह आएगी या नहीं आएगी। और या तो कभी कभी लगता है कि भाई अब जी लिया जितना जीना, अभी आंखें बंद हो जाए, अब और नहीं सहा जाता। पर वो भी नहीं आ रहा। भगवान कहता कि मेरे बच्चे तेरे लिए अभी और दर्द बाकी है तुझे अभी और दर्द झेलने हैं, तुझे झेलने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे बाकी बच्चे शायद नहीं झेल सकते अभी, तो उनके हिस्से के भी तू ही झेल, बाद में आइए ऊपर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਰਦਾਰ, ਔਖੇ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਦੇ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਤੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਭੇਜਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਰਾਸਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋੜਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ। आपकी ये बात बिल्कुल सही है, आपकी ये बात बिल्कुल सही है, पर इसमें मैं एक बात बोलूंगी। एक मैंने रीड करा था कहीं पे, जब हम स्वर्गवासी हो जाते हैं और जब हमारा अगला जन्म लिखा जाता है, तो उस वक्त भगवान और यमराज हमसे एक बात पूछते हैं। वो बात कुछ ऐसी है कि तेरे पिछले जन्म का तेरा ये प्यारा ऐसे रह गया था ना, इस जन्म में तुझे इतने क्षण और इतने पल इसके साथ मिलेंगे, तुझे वो चाहिए या अपना जन्म भला चाहिए? ठीक है, इंसान मार जाता है लालच कि यार मेरे पिछले जन्म में मेरा टाइम रह गया था, इसके साथ मेरा प्यार रह गया था, मुझे तो चाहिए, भगवान जी दे दो, डन है। हम वो गलती कर जाते हैं, वो लालच होता है हमारा। हमें उसकी जगह ये मांगना चाहिए हमारी लाइफ अच्छी हो, क्योंकि अगर हम वो मांगेंगे ना तो शायद अगले जन्म में हमें वो चीज अपने आप मिल जाए, है ना। तो ये भी ऊपर से लिख के आता है। आज मेरा जो वक्त उसके साथ मेरा बिताया मैंने, चाहे 3 साल चाहे 2.5 साल, लोग कहते हैं 2.5 साल ही तो थे, 3 साल ही तो थे। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, चाहे वो साल 2.5 चाहे वो साल 3, मेरी सोचिए, किसी को मानना हो किसी को जानना हो तो एक लम्हा काफी है, किसी को ना मानना हो ना जानना हो तो आप 2.5 छोड़ो, मैं बोल रही हूँ 25 साल ले लो। तो मैंने उसको माना भी, उसको जाना भी, उसको पहचाना भी, उसको भगवान भी माना। तो मैं तो भैया वो 2.5 साल में बोलूंगी मैंने तो अपने 2 जन्म दे दिए, है ना। पर हाँ, एक चीज का वो भी है कि शायद ये मेरा ही लालच था, जो इस दुनिया में आने से पहले मैंने उस भगवान को बोला होगा कि यार मेरे पिछले जन्म में मैं कम टाइम बिताया था, मैंने इसके साथ, मुझे इस जन्म में चलो 2.5 साल मिल रहे हैं, मैं खुश हूँ। शायद मैंने वो चुनकर गलती कर दी,
वो चुनकर गलती ये कर दी, वो 2.5 साल जो मैंने चुने, वो 2.5 साल अब आगे की मेरी सारी जिंदगी खराब कर गए। अगर उस वक्त ऊपर मैंने चुना ही ये होता है, भगवान मुझे तो खुशनुमा जिंदगी दे दे, जो पिछले जन्म का वो था रह गया, अब अगले जन्म में वही क्यों चाहिए, कुछ नया ट्राई करते हैं, है ना। तो वो भी ऊपर मेरी गलती थी। अगर ऊपर उस वक्त मैंने सही मांगा होता तो आज ये दुख नहीं झेल रही होती। ऊपर का वो लालच मार गया मुझे, तभी कहते हैं लालच बुरी बला है। मैं ना ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਦਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਮੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਐ ਲੱਗੀ बददुआ उसने मेरे लिए मांगी। ਅੱਛਾ हाँ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, बिल्कुल। है ना, कि मैं उसके लिए पर एक बददुआ मांगती जरूर हूँ। मेरी उसके लिए बददुआ ये है, उसे अच्छा नाम मिले, उसे शोहरत मिले, उसे रुबाब मिले, उसे जनानी भी ऐसी मिले जो उसका बहुत करे। पर मेरी दिल से दुआ ये है, उसके घर औलाद मेरे जैसी है। असली सजा उसकी वो है, वो सजा उसके लिए ये होगी जब उसके घर औलाद मेरे जैसी आएगी ना, जब उसकी औलाद बड़ी हो जाएगी और शायद उसकी औलाद के साथ ये होगा, तो वो याद करेगा कि मैंने ऐसा किसके साथ करा था। कर्म है तो आई जाता, उसे सब मिले, सब कुछ मिले। मैं कहती हूँ वो जिस पे हाथ रखे वो सोना हो जाए, फिर उसको औलाद मेरे जैसी आए। ये बद्दुआ है मुझे से। क्योंकि उस औलाद पे तो वैसे भी मेरा हक था, उसने कहा था। तो अगर उस औलाद पे मेरा हक था तो वो औलाद मेरे जैसी जाएगी, तो वो औलाद मेरे जैसी जानी चाहिए। इतनी दुआ मांगती उस भगवान से। और उसको एक बात बोली थी, मैंने कहा जा यार कायरव, मैं कहा इतनी मोहब्बत, इतना अपनापन, इतना सब कुछ दिया तुझे, इस मोहब्बत के बदले एक चीज तो मांग ही सकती हूँ। बोलता बोल क्या चाहिए। मैं कहा यार तेरी जो औलाद होगी उसको मेरा नाम दे दियो। अगर उसको मेरा नाम दे दिया ना उसने, मेरे लिए उससे बड़ी खुशी भी कोई नहीं है। पर हाँ, जो मेरे साथ आज वो कर गया है, उसकी बद्दुआ मेरे साइड से तो सिर्फ इतनी है, हे भगवान इसको औलाद मेरे जैसी दियो, और कुछ नहीं चाहिए। ताकि उसे पता चले, पता क्या होता है जब खुद पे बीतती है ना, तब पता चलता है तकलीफ क्या होती है, क्या दर्द होता क्या है। होता है। हाँ, मुझे लगता है उसके साथ ये होना चाहिए, उसे लेसन मिलना चाहिए, जरूरी है। तो दोस्तों ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਡੀ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ नहीं दे रहा, अपने शो ਦਾ हो गया, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ कुछ कहना चाहोगे। मैं दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग इन्हें फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर, और घर जैसा माहौल है, ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार आई हूँ। और दूसरी बात मैं लोगों से ये कहना चाहूँगी कि प्यार करो पर तोल नाप कर, पहले तोल लो और नाप लो कि बैलेंस बराबर है या तराजू ऐसे है। क्योंकि ऐसे उस वक्त आपको पता नहीं चल रहा है, वो बाद में दुखता बहुत है। तो मोहब्बत करो, ये बंद मत करना, ये भी साथ में चला लेना थोड़ा सा, क्योंकि आज मैं बहुत पछता रही हूँ। थैंक यू। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਡੀਡੀ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।